Welcome to Edvis Learning. So students, in last lecture we have completed our practice set 3.1. Now in this lecture we'll come up with next property and practice set 3.2. So let us learn a new property, that is theorem of touching circle. See, what does it mean? टचिंग सर्कल मीन्स सर्कल्स जो एक दूसरे को टच करेंगे, सर्कल जो एक दूसरे को टच करेंगे, दे आर टचिंग सर्कल्स. ओके, टच करेंगे मतलब क्या? दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट. एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे? टच करेंगे. सो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. सो वी हैव थ्योरम, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच हो रहे तो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे सर्कल एक दूसरे को टच होने वाले, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स. सेंटर से जो लाइन पास होता है, सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो हियर these are the two circles touching each other externally. Circle with center A, circle with center B, and touching each other at point P. So according to our statement, their point of contact का मतलब है point P, lies on a line joining their center. Center को line join करने वाला line कौन है? AB. तो P AB के ऊपर present है. In other words, we can say that A dash P dash B. Okay, this is for externally touching circle. Also, A and B are the centers of circle. A and B are the centers of circle. So distance between their centers, centers are A and B. तो A और B के बीच में जो distance है, that is AB is equal to what? As the points are collinear, it is AP plus PB. That is AB is equal to AP plus PB. तो इसका दूसरा मतलब है the line segment, the distance between their centers is equal to sum of their radii. ये कब होता है? When the circles are externally touching circles. And for internally touching circles, see, externally touching circle and internally touching circle, we have studied its introduction part in our 9th standard. So if the circles are internally touching circle, then what will happen? These are the two circles with center A and B touching each other at point P. According to our statement, their point of contact is P, lies on a line joining their center. So यहाँ पे आएगा A dash B dash P. Now in this case, distance between their centers, is equal to bigger radius minus smaller radius. See, for bigger circle radius is AP, for smaller circle radius is BP. It is AP minus BP. Therefore, in case of internally touching circle, distance between centers is equal to the difference between their radii. Okay, so this is इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. ओके, इसका छोटा सा थ्योरम आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है, जो एग्जाम में पूरा लिखने को नहीं आने वाला है. सो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल स्टेटमेंट, इसको वापस एक बार मैं रिपीट करने वाला हूं, देन विल गो फॉर क्वेश्चंस. थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, दैट इज व्हाट इज थ्योरम? इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो एक्सटर्नली रहेंगे या फिर इंटरनली रहेंगे, दोनों केस में प्रॉपर्टी सेम रहेगा. दैट इज if two circles touch each other, their point of contact in both the cases, P is the point of contact of circle. Point of contact का मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ओके, सो इट इज पॉइंट P. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन. सो AB, इसके ऊपर पॉइंट P है. सो फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल इट इज A dash P dash B. इसका मतलब क्या है? पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन के ऊपर है. एंड हेंस for externally touching circle, distance between their centers is equal to sum of their radii, AP plus PP. Now for internally touching circle, property same. The touching point is P, lie on a line segment joining their center A dash B dash P. And here distance between centers is AB is equal to bigger radius minus smaller radius. AB is equal to AP minus BP. Okay, तो ये प्रॉपर्टी हमको क्वेश्चन में अप्लाई करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हमको जैसे 3.2 में फर्स्ट टू क्वेश्चन है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि सर्कल्स आर इंटरनली टचिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सर्कल्स आर एक्सटर्नली टचिंग. तो जहां पे इंटरनली टचिंग है वहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहां पे एक्सटर्नली यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज क्या क्या प्रॉपर्टी है देखो.
remember this, the point of contact of touching circles line on a line joining their centers. ये अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी था. अभी एक्सटर्नल और इंटरनल सर्कल्स के बारे में. See here, फर्स्ट प्रॉपर्टी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स. टचिंग सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर. एक्सटर्नली के लिए क्या प्रॉपर्टी था सेपरेट, इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई. मतलब अगर सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई. रेडियस को ऐड करेंगे. एंड फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल व्हाट विल हैपन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल इज टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस. जो लास्ट में लिखा था ना प्लस एंड माइनस. ओके, सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स फॉर आवर प्रैक्टिस सेट 3.2. 3.2 के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास है. पहला स्टेटमेंट क्या है, व्हेन सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली their point of contact lies on a line joining their centers. If the circles are externally touching circle, then distance between their centers is equal to sum of their radii. And if the circles are internally touching circle, then distance between their centers is equal to difference between their radii. Okay, so using these three property, we'll move to our questions. That is exercise 3.2, question number 1. Okay, now read the question carefully. Two circles having radii 3.5, 4.8 centimeter touch each other internally. क्या बोला है क्वेश्चन में कि सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंटरनली वाला. ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. नाउ कम ऑन से, अगर सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो अभी मैंने प्रॉपर्टी सिखाया, अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई. मतलब बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस हमको करना है. दैट इज सॉल्यूशन. लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर r1 एंड r2. मतलब फर्स्ट रेडियस r1 सपोज इट इज 3.5 सेंटीमीटर, सेकेंड रेडियस r2 सपोज इट इज 4.8 सेंटीमीटर. नाउ two circles are touching each other internally. It is already mentioned in the question that circles are touching each other internally. So by theorem of touching circles, the centers and the point of contact, are collinear. Center and point of contact are collinear. And what is next property? Therefore, distance between the centers of circle touching internally is equal to the difference between their radii. As हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि डिफरेंस मतलब बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस हमको करना पड़ेगा. सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू r2 माइनस r1. इट इज 4.8 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर. एंड हेंस द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर. ओके, लेट अस रिवाइज दिस क्विकली. तब तक आप लोग लिख के ले सकते हो. द टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली. एक दूसरे को वो इंटरनली टच करेंगे. एज दे आर इंटरनली टचिंग सर्कल, क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई. देयरफॉर लेट द रेडिया ऑफ सर्कल्स आर r1 and r2. first radius say 3.5 centimeter, it is r1. second radius r2, say it is 4.8 centimeter. The two circles are touching each other internally. So by theorem of touching circles, centers and point of contact are collinear. The distance between the centers of internally touching circle is what, is equal to the difference between their radii. Therefore difference between the radii मतलब bigger radius minus smaller radius हम लोग करेंगे. 4.8 minus 3.5 equals to 1.3 centimeter. So distance between their centers is equal to 1.3 centimeter. Okay, so this is for question number 1, जिसमें आपको internally touching circle के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है. Now second question, two circles of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touch each other externally. यहाँ पे सर्कल अभी क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. सो एज वी नो, अगर सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, यस बोलो आंसर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई. देयरफॉर let the radii of two circles are r1 and r2. r1 is 5.5 centimeter, r2 is 4.2 centimeter.
two circles are touching each other externally, so we know the property by theorem of touching circles, centers and point of contact are collinear. Also distance between their centers is equal to sum of their radii, so distance between center equal to radius को add करेंगे, r1 plus r2 5.5 plus 4.2 is equal to 9.7 centimeter, and hence the distance between their centers is equal to 9.7 centimeter. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, the circles are internally touching circle, and सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, circles are externally touching circles. ओके, इंटरनली है तो ऑफ कोर्स हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सटर्नली अगर है तो हम लोग उनको ऐड करेंगे, ठीक है. यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, तब तक इसको रिवाइज कर लेते हैं. टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. Find the distance between their centers. So solution, let the radii of two circles be r1 and r2. r1 5.5 centimeter, r2 4.2 centimeter. The two circles are touching each other externally, therefore by theorem of touching circles the center and point of contact are collinear. Okay, the distance between their centers is equal to sum of their radii. तो radius को हमने add कर दिया, after addition answer is equal to 9.7 सेंटीमीटर. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 3, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर. नाउ इसका हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन सॉल्विंग हम लोग अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे, जैसे एक्सटर्नली और इंटरनली. सो दिस इज फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. अगर दो सर्कल ये रेडियस के अगर एक दूसरे को टच कर रहे एक्सटर्नली तो क्या आएगा, देखो. Here we know that if the circles are externally touching circle, then distance between their centers is equal to sum of their radii. मतलब अगर एक्सटर्नली है और अगर हमको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स फाइंड करना है तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर. तो हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस between centers is equal to 2 radius, that is 4 plus 2.8 is equal to, okay, 4 plus 2.8 हम लोग इसको ऐड करेंगे, that will be equal to 6.8 सेंटीमीटर. तो what will do, हम लोग पहले ए बी ड्रॉ करेंगे 6.8 सेंटीमीटर का. पहले क्या किया, ये ए बी को हमने पहले ड्रॉ कर लिया 6.8 सेंटीमीटर का, ठीक है. आफ्टर दिस हमने ए पे पॉइंटर रखा, दोनों में से एक रेडियस कंसीडर किया, 2.8 सर्कल ड्रॉ किया, फिर यहां से हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया. दिस इज फॉर फर्स्ट डायग्राम. ओके, हमको क्या करना है, एक्सटर्नली इंटरनली सेम रेडियस से एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली दोनों रेडियस का सर्कल्स हमको ड्रॉ करना है. अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ओके, सो दीस आर द टू सर्कल्स व्हिच टच ईच अदर इंटरनली. ठीक है, तो हमको क्या करना है, एज यहां पे डिफरेंस आएगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई. तो ये पूरा कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, और ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर का है. ठीक है, तो सेंटर्स में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो, ए बी, ए एंड बी आर सेंटर्स इज इक्वल टू बिगर माइनस स्मॉलर, सो इट इज 4 माइनस 2.8. ओके, तो 4 माइनस 2.8 कितना आएगा, हमको माइनस करना है, सो इट इज 4.0 माइनस 2.8. ओके, सो यहां पे आएगा 10, तो ये हो जाएगा 2, यहां पे आएगा 1.2. तो इसका मतलब ये पूरा 4 है और ये कितना होना चाहिए डिफरेंस उसका 1.2, और ये बचेगा कितना फिर 2.8. तो पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ओके, ये पहले हमने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, यहां से हमने 1.2 पे ये पॉइंट ए लिया, और उसके बाद ए से और बी से हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ गिवन रेडियस. ओके, सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हमको इस तरह से सॉल्विंग उसका करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके उसको सॉल्व करना है. दिस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर द सर्कल्स विद सेंटर P and Q touch each other at point R. Line passing through R meets the circle at A and B respectively. Prove that
आपको फर्स्ट वन प्रूव करना है एपी पैरेलल टू बीक्यू, देन वी नीड टू प्रूव एरिया ट्रायंगल एपीआर सिमिलर टू एरिया ट्रायंगल आरक्यूबी एंड फाइंड एंगल आरक्यूबी इफ एंगल पीएआर इज इक्वल टू 35 degree. Okay, so this is the given diagram, this is the given question. The circles with center P and Q, so these are the two circles with center P and Q touch each other externally at point R. Okay, then a line passing through R, R से पास होने वाला लाइन दोनों सर्कल को A और B में इंटरसेक्ट करेगा. आपको सबसे पहले प्रूव करना है AP is parallel to BQ, फिर हमको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है. ऑल्सो वी नीड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आरक्यूबी इफ वी आर गिवन दैट दिस एंगल पीएआर इज इक्वल टू 35 डिग्री. ओके, सो आंसर इन ट्रायंगल एपीआर, इन ट्रायंगल एपीआर, इन दिस ट्रायंगल वी हैव these two sides are equal, that is radii of same circle, and therefore as these two sides are equal, radii of same circle, the triangle is a isosceles triangle. So therefore as the triangle is isosceles, these two angles are congruent to each other. Isosceles triangle theorem. Exactly same way वो साइड हम लोग जाते हैं तो सेम Q is the center, ये दोनों सेम, एंड अगेन ये एंगल और ये एंगल भी सेम आएगा. ओके, these two angles are same, but in equation number 3 what we have, ये एंगल और ये एंगल भी सेम है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल, ये चारों एंगल इक्वल है, ये चारों भी एंगल इक्वल है. एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी हैव एंगल आर ए पी. ओके, एंड एंगल आर बी क्यू लाइक दिस. ओके, तो ये बन रहा है देखो यहां पे लाइक दिस. ठीक है, तो Z बन रहा है मतलब अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर AP इज पैरेलल टू BQ, रीजन अल्टरनेट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. ओके, तो ये फर्स्ट वन अपना यहां पर प्रूव हो गया. नाउ मूविंग टुवर्ड सेकेंड क्वेश्चन. इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, इन दिस एंगल A, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. अभी हमने प्रूव किया कि चारों एंगल इक्वल थे करके. ऑल्सो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दोनों ट्रायंगल्स में बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर. आफ्टर दिस एंगल PAR, दिस एंगल इज इक्वल टू 35 डिग्री. ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू 35 डिग्री. सो एज दिस एंगल इज इक्वल टू 35, इसको भी आना पड़ेगा 35. ऑल्सो ये भी 35 है, ये सब 35 है. तो इस ट्रायंगल में हमको ये एंगल को फाइंड करना है. ठीक है, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इट इज 35 प्लस 35, एंगल Q हमको फाइंड करना है. सो इट इज ऐड करेंगे 35 प्लस 35 70, 70 को वो साइड जाके हम लोग माइनस करेंगे. 180 माइनस 70 कम्स आउट 110. Thus the measure of angle RQB is equal to 110. Okay, so this is the answer for third option. ठीक है, ये समझ में आ गया है सबको. इसको वापस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. इन फिगर दिस इज द गिवन डायग्राम, वी नीड टू प्रूव दैट these two lines are parallel. ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. ओके, ऑल्सो क्या प्रूव करना है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. ऑल्सो वी नीड टू फाइंड मेजर ऑफ दिस एंगल. तो स्टेप नंबर 1 क्या है देखो. इन स्टेप नंबर 1 इन दिस ट्रायंगल ये दोनों इक्वल बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. सो देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे हम लोग अगर यहां पे जाते हैं तो ये दोनों भी रेडियस है, तो ये भी ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस, तो ये दोनों एंगल इक्वल. ओके, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. बट ये दोनों एंगल अपोजिट है, ये और ये, तो इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर ये वाला एंगल, फिर ये एंगल, ये चारों भी एंगल सेम. सो आउट ऑफ दिस ये दोनों एंगल इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 में, ये दोनों सेम है इक्वेशन नंबर 2 में, ये दोनों सेम है इक्वेशन नंबर 3 में. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 व्हाट वी कैन राइट इज दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल सेम. तो यहां पे अपने आप Z बन रहे हैं.
अगर यहाँ पे z बन गया तो इसका मतलब these are alternate angles, therefore we have our answer as lines are parallel, alternate angle test. ठीक है, now next, ये फर्स्ट वन अपना प्रूव हो गया. अभी सेकेंड थर्ड प्रूव करने के लिए हम लोग जाएंगे, दैट इज इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, इन दिस टू ट्रायंगल क्या क्या इक्वल है. हमने अभी प्रूव किया कि एंगल ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल है, ऑल्सो ये है अपोजिट एंगल. सो देयरफॉर these are the triangles similar by AA test of similarity. Now we know that this angle is equal to 35, तो ये भी 35 रहेगा. इसका ये अपोजिट है तो ये भी 35 है और ये भी 35 है. ये एंगल फाइंड करने हमको बोला है. ठीक है, तो therefore in that triangle तीनों एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो 35 हमको पता है, ऐड करेंगे 70, वो साइड जाके उसको माइनस अगर करते हैं हम लोग तो आंसर RQB is equal to 110 डिग्री. सो दिस इज आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरीज 4 मार्क्स. इन अ फिगर द सर्कल्स विथ सेंटर A and B टच ईच अदर एट पॉइंट E. लाइन L is a common tangent which touches circles at C and D respectively. Find the length of segment CD if the radii of circles are 4 and 6 centimeter. So this is the given diagram. Two circles with center A and B touching each other at point E. Line L is a common tangent touching circles at point C and D. Okay. Radii of circles are 4 and 6 centimeter. ठीक है. So this is the construction part. Radius आपको दिया है वो perpendicular है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है. If two circles touch each other externally, distance between their center is equal to sum of their radii. Therefore, first step. These are the two circles touching each other externally. Distance between their centers are A and B is equal to sum of their radii. तो इसका मतलब AC जैसे 4 है वैसे AE भी कितना आने वाला है, 4 आएगा. तो AC और AE is equal to 4 सेंटीमीटर. ओके, एज वेल वहां पे देखो BD is equal to BE is equal to 6 centimeter. Why? Because they are radii of same circle and therefore अगर ये 4 है तो ये भी रहेगा 4, ये पूरा 6 है तो ये भी आएगा 6, मिला के हो जाएगा 6 plus 4 is equal to 10 centimeter. ठीक है. It is given that L is a common tangent which touches the circle at point C and D and therefore we have angle ACD 90 degree as well as this angle is equal to 90 degree. Reason tangent theorem. रीजन क्या आएगा इसका, टेंजेंट थ्योरम. तो दो बातें हमने सीख ली कि ये रेडियस 4 है तो ये भी 4 आएगा, ये 6 है तो ये भी 6 आएगा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री. ओके, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन BD. सो नेक्स्ट स्टेप हियर, यहाँ पे हमने बोला था कि ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 का है. ये तो परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा रेक्टेंगल. As it is rectangle, opposite sides are equal. So we have CD and AF, they are equal, as well DF and AC, they are equal. Now this complete segment BF is equal to, ये BF is equal to कितना आएगा, देखो BF is equal to BD minus DF. पूरा BD में से DF को माइनस करेंगे. DF कितना है, देखो DF is equal to BD minus DF. Now BD as it is and DF के बदले में क्या लिखा, AC लिखा. DF के बदले में क्या लिखा, AC लिखा. AC कितना था, 4. सो इट इज 6 minus 4 is equal to 2. तो ये कितना आने वाला है, 2. और यहाँ पे ये 4 था, ये 6 था, मिला के कितना होने वाला है, ये 10. ठीक है. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABF इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 का है, तो बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. ओके, नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, AF को फाइंड करना है. तो फिर BF इस साइड जाके माइनस हो जाएगा. पुट द वैल्यूज, 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100, 2 का स्क्वायर इज 4, सो इट इज इक्वल टू 96. रूट करेंगे इसका, AF इज इक्वल टू रूट 96. तो 96 कौन से टेबल में आने वाला है, इट इज 16 इंटू 6. सो इट इज 16 का रूट आएगा 4 रूट 6. सो AF का आंसर ये कितना आया, 4 रूट 6 आया. एज इट इज रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी कितना आने वाला है, 4 रूट 6. एंड देयरफॉर
the length of segment CD is equal to 4√6. Okay, this is about the last question. Now इसको एक बार वापस हम लोग रिवाइज करेंगे. Let us revise this question. In a figure, these are the two circles touching each other externally at point E. A and B are the centers of circle. A and B are the centers of circles. Okay. Also, it is given that radius of circle is 4 and radius of circle is 6. Okay. So first property, if two circles are touching, तो यहां पे देखो अगर ये AC is a radius 4, तो A is also radius which is equal to 4. So we have AC is equal to AE is equal to 4 centimeter, as well BD is equal to BE is equal to 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये 6 आएगा तो ये भी आएगा 6. पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर कंप्लीट सेगमेंट AB is equal to 4 plus 6 is equal to 10. तो ये पूरा मिला के कितना आने वाला है, 10 आएगा. ठीक है. It is given that line L is a common tangent touching the circles at points C and D, and therefore we have by tangent theorem these two angles are equal to 90 degree. Tangent theorem, and draw this AF as a perpendicular. ये परपेंडिकुलर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, इन दिस क्वाड्रिलेटरल दिस एंगल इज 90, दिस एंगल 90, ये तो पहले से 90 था, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. एज इट इज रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है. नाउ दिस कंप्लीट सेगमेंट BF इज इक्वल टू BD माइनस DF. हियर BD माइनस DF, BD को ऐसे ही रखा, DF के बदले में 6 लिया, AC लिया. ओके, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अभी BD कितना था अपने पास, 6 था, और AC कितना था, 4 था, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2. ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी, ये 10 है करके. अभी लास्ट स्टेप, इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस को यूज करेंगे. इन दिस ट्राइंगल, ओके, पाइथागोरस थ्योरम. AF हमको फाइंड करना है, तो AF को ए साइड लिया, BF जाके माइनस हो गया, 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर से 100 माइनस 4, सो इट इज 96. फिर इसका रूट करेंगे, दैट इज 16 इंटू 6, सो इट इज इक्वल टू 4√6. तो AF का आंसर हमारे पास आ गया 4√6. तो जितना AF है उतना CD, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, एंड देयरफॉर CD का लेंथ कितना आएगा, 4√6 सेंटीमीटर. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 3.2. सो 3.2 हमने इसके साथ कंप्लीट कर लिया. इन नेक्स्ट सेशन विल गो फॉर सम मोर प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग सर्कल. थैंक यू वेरी मच.